So students, good afternoon and welcome to the class today. So how are you all? Hope you all are fine. And today we are going to begin with a new chapter of your English book Hornbill, and that is chapter number 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. Okay, green movement आया था एक हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं that तो वो movement क्या था? In the world history, it's mentioned the green movement. Can anyone recall it? Can anyone just have any information regarding it? So basically, the ailing planet और उस पे एक green movement आया, and what is the role of that movement? That is basically the crux of this chapter. So it's written by नैनी पालकियावाला और उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से एक पूरा का पूरा इस मूवमेंट को रिकॉल करवाया है. So we see now before we read on to the text, हम टेक्स्ट को पढ़ें उससे पहले just see, we'll share some chapter highlights. Okay, so the chapter highlights are going to make the chapter more easy to be understood by you. So in basically it starts from the year 1972. Green movement started with the first nationwide Green Party being established in New Zealand. Okay, so in 1972, जो okay, yes. So in 1972, the Green movement started with the first nationwide Green Party being established in New Zealand. So ये in 72 ये जो ग्रीन मूवमेंट था ना, इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, ओके, बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड. ये कब एस्टैब्लिश हुई ग्रीन पार्टी? इन न्यूजीलैंड. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972 एंड विद दिस नेशन वाइड ग्रीन पार्टी द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड. For the first time in the human history, there was a realization. First time in the human history, एक realization हुआ that the planet is a living organism. That planet is itself also a living organism, and the health of the planet is declining. Due to the impact of human activities, इन्हीं human activities के impact के कारण on its natural resources, उनके natural resources पे, the World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development in 1987. तो ये जो इम्पैक्ट था ना डिक्लाइनिंग हेल्थ का, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना, द पोल्यूशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो ह्यूमन एक्टिविटी. ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, इनका बहुत बैड इफेक्ट हो रहा है ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द वर्ल्ड कमीशन जो था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसने पॉपुलराइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1987. मैन जो था, जो पीपल, जो ह्यूमन बीइंग जो है, हैज रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम, has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. एक domination के ऊपर based एक system था, उससे वो man जो था उसका focus change हो गया था to what? To a system based on partnership. कहते हैं ना, मिलके हमें काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को dominate करके काम नहीं होगा. Biologist thinks that we may never discover many unknown species if we do not conserve their habits. And biologist जो थे वो ये बोलते थे that we may never discover, बहुत सी unknown species हैं, उन्हें तो हम discover ही नहीं कर पाएंगे अगर हम उनके habitats को conserve करके नहीं रखेंगे. तो we will not be able to discover many unknown species. So Mr. L.K. Jha जो थे, in the Brandt Commission report, he raised a question. और वो क्वेश्चन क्या था? Whether we wanted to leave behind a scorched, sick environment for our coming generation. क्या हम अपनी आने वाली generations के लिए एक scorched और एक sick environment छोड़ के जाना चाहते हैं? This was a big question mark. ये एक सवाल था जो बहुत बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया. लेस्टर आर ब्राउन्स बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसने आइडेंटिफाई किया द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ एज फिशरीज, forest, grassland and croplands. They provide food supply and raw material for our survival, and according to the World Bank, we need to increase the rate of forest planting by 5 times to cope with the expected fuel wood demand. Now Lester R. Brown की जो बुक है जिसका नाम है The Global Economic Prospect, वो आइडेंटिफाई करता है the principal biological system. Okay, the principal biological system of the earth as, जो हम बोल सकते हैं इस अर्थ पे फिशरीज हैं,
There are forests, there are grasslands, and there are croplands, and they provide food and also they supply raw material for our survival. We know कि ये जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, जो ट्रीज हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमें क्या देता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस फूड सप्लाई, एंड एनवायरनमेंट ही कहीं ना कहीं पे हमें रॉ मटेरियल देता है दैट इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. According to the World Bank के according, we need to increase the rate of forest. We really need to increase the rate of forest planting by 5 times. कितने? By 5 times, just to cope with the expected fuel wood demand. किस लिए? That we should cope up with the expected fuel wood demand. And दो आर्टिकल 48A, जो आर्टिकल है 48A of the Constitution of India, ठीक है, किसका? Constitution of India का, provides that the state shall try to protect and improve the environment. वो ये provide करता है कि जो state है ना, it shall just try to protect and improve the environment. हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी state की जिम्मेदारी है कि हम अपने environment को protect करें, अपने environment को, अपने forest को, हमारी country के wild life को हम लोग क्या कर सके? हम उसे safeguard कर सके. ओके, उसे हम लोग क्या कर सके? हम उसे safeguard कर सके. Then this has not been implemented properly. ये properly implement नहीं हुआ. This has not been implemented properly. ये properly implement नहीं होने की वजह से इसके अंदर क्या problem हो रही है? Growing population is one of the strongest factor changing the future of human society. और growing population है ना, वो one of the strongest factor है हमारा, ठीक है, फैक्टर्स चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसने हमारी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को चेंज किया है. As income rise and education spreads, the rate of population increase will decrease. और जैसे जैसे income rise हुई, education spread हुई, जो population का increase है ना, it's going to decrease, and this is going to improve the health and as well as हेल्थ को भी इम्प्रूव कर देगी. एंड दस जो डेवलपमेंट है इज द बेस्ट वे टू चेक पॉपुलेशन. आपको अगर डेवलपमेंट को चेक करना है ना, द बेस्ट वे इज टू चेक द पॉपुलेशन. Okay, so the author here claims that industry must join the cause and work towards become eco-friendly, just as Dow Pont under the leadership of Edgar S. Woolard. Margaret Thatcher जो थे, they also expressed her concern saying that no generation has a freehold on this earth. कि किसी भी generation का freehold नहीं है इस earth के ऊपर. We live a life like tenants. हम तो tenants की तरह जिंदगी जीते हैं. Who have a full repairing rental contract, जिनका full repairing और rental contract है इस earth के साथ में. Mr. Lester R. Brown says, और Mr. Lester R. Brown क्या बोलते हैं? That we have not inherited this earth, कि हमने इस अर्थ से इनहेरिट नहीं किया this earth from our forefathers. हमें forefather से इनहेरिट नहीं हुआ है ये. We have borrowed it from our children. हमने उसे अपने चिल्ड्रन से बोरो कर रखा है. ये मत सोचो कि आपके पूर्वज आपको ये अर्थ देके चले गए और आप इसको स्पॉइल करके छोड़ दो. नो, ऑलवेज थिंक कि ये आपने अपने आने वाली जनरेशन, अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड रिटर्न टू देम in a much better and improved way. So this way it is seen that green movement basically was after what? Was after the declining health of the earth, and जो उसका एक continuous relevance था for its improval, that is basically we can say the main element of the green revolution. So see, ये जो article हम पढ़ रहे हैं, now we'll move to the text. So see, the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. Now see, ये जो फॉलोइंग आर्टिकल है ना, ये नानी पालखेवाला ने लिखा था एंड इसे पब्लिश किया गया था इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24th नवंबर 1994. और ये इशू होता है, दिस इश्यूज की that he raised, वो issues जो उन्होंने raise किए were regarding the declining health of the earth. जो declining health है हमारे earth की continue to have relevance. इसका relevance continuously रहा है. It has been a topic of very significant importance, very relevant topic to be discussed and to be cared of. So see, now the text moves on. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in the New Zealand. Since then, the movement has not looked back. So
वन कैनॉट जस्ट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई भी किसी भी मूवमेंट को इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हम रिकॉल नहीं कर सकते, विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन, जिसने इमेजिनेशन को ग्रिप करके रखा है, किसकी इमेजिनेशन, ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, सो दैट कि कंप्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ नियरली 25 years अगो, एंड इन 1972 जो वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो था वो फाउंड हुआ इन न्यूजीलैंड, एंड सिंस देन दिस मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, उसके बाद में ये ग्रीन मूवमेंट ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा. वी हैव शिफ्टेड one's hopes irrevocably from the mechanist view to the holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. Now see, हमने shift किया one जो होता है, we have shifted one hopes कि irrevocably from the mechanist view to what, to the holistic and ecological view, पूरा ecological view जो था of the world उसकी तरफ. ओके ये एक शिफ्ट है इन ह्यूमन परसेप्शन, ये ह्यूमन परसेप्शन में आने वाला एक शिफ्ट है. एज रेवोल्यूशनरी एज दैट, उतना रेवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जो इंट्रोड्यूस किया किसने, कोपरनिकस ने, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century, जिन्होंने मैनकाइंड को टॉट किया इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, की जो अर्थ है और जो दूसरे प्लैनेट्स है दे जस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन. And for the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness. A growing worldwide consciousness आई है that the earth, की जो earth है ना, itself is a living organism. की earth क्या है? itself एक living organism है. Okay, an enormous being of which are the parts, और enormous beings जो उसके अंदर रहने वाले हैं वो उसके parts हैं. It has its own metabolic needs, इनकी अपनी metabolic needs हैं, and vital processes हैं, इनके अपने vital processes हैं, which needs to be respected and preserved. ये जो vital processes हैं ना nature के, इन processes को हमें respect भी करना पड़ेगा and हमें इन्हें preserve भी करना पड़ेगा. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. ठीक है? We have begun to realize our ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. और ये जो अर्थ के जो वाइटल साइंस है ना, ये रिवील करते हैं एक पेशेंट को जो उसकी हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो रही है. एंड वी हैव बिगिन टू रियलाइज, हमने बिगिन किया है रियलाइज करना, व्हाट वी हैव बिगिन टू रियलाइज कि जो हमारे एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं टू बी गुड टुवर्ड्स स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं ऑफ द लीगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो हमें उस चीज को ध्यान रखना है कि हमें जो प्लैनेट दिया गया ना, वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट एंड वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल, अ ट्रस्टवर्दी पर्सन टुवर्ड्स द लीगेसी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. ये जो फ्यूचर जनरेशन की लीगेसी है ना हमारे पास में, ये फ्यूचर जनरेशन की जो एक अमानत है हमारे पास में, द अर्थ, हमें इसका पूरा ध्यान रखना है. ओके, हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी. The concept of sustainable development was popularized in 1987 and by the World Commission on Environment and Development in its report. It defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resource future generation would need. ये जो कॉन्सेप्ट आता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली आपने ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा होगा या आपने साइंस में कहीं पढ़ा होगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली मींस व्हाट, उसका मतलब होता है दैट यू हैव सम नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर टू यू, आप उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज यू आर गोइंग टू यूज द रिसोर्सेज बट आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि वो वेस्ट ना हो एंड दी जो आपके पास में सरप्लस है या जो रिक्वायर्ड अमाउंट है आपके पास में वो बचा रहे फॉर द यूज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, जिसे कि फ्यूचर जनरेशन यूज कर पाए. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, that was popularized in 1987 by the World Commission के through on Environment and Development. Now, in its report, अपने रिपोर्ट में इन्होंने डिफाइन किया एक आइडिया. क्या था आइडिया? एज डेवलपमेंट that meets the need of the present, वो डेवलपमेंट
जो प्रेजेंट की नीड्स को मीट करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए जो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करता है, दैट इज बेसिकली द डेवलपमेंट। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको भी एक्सप्लेन किया था, दैट यू यूज दी रिसोर्सेज इन सच अ वे कि वो आने वाली आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव्ड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है हमने कोल एंड फ्यूल हमने तो देख लिया बट आने वाली फ्यूचर जनरेशन को पता ही ना हो कि कोल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। So without stripping the natural world of resources, future generation would need, तो बिना स्ट्रिप किए जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को जिसकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें हमें अभी स्ट्रिप नहीं करना, अभी उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना। ओके। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads. एक जू है लुसाका जैम्बिया में, वहां पे एक केज है जहां पे एक नोटिस लिखा हुआ है। उस नोटिस पे क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, इन केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, बट एक शीशा है जिसमें आप खुद को देख सकते हो। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. And now, thanks to the efforts, जो number of agencies in different parts of the countries और different countries जो अपनी तरफ से बहुत effort कर रही हैं, and they have been able to brought new awareness that has been now dawned upon the most dangerous animal in the world, and he has realized the wisdom of shifting from a system, और उन्होंने रियलाइज किया है द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, वो सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ओके। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, साइंटिस्ट ने अभी कैटलॉग किया है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज with which mankind shares the earth। हम एज अ मैनकाइंड, एज ए ह्यूमन, हम शेयर करते हैं इस अर्थ को कितने मिलियन स्पीसीज के साथ में? 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के साथ में। एंड दिस एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, ये जो एस्टिमेट है ना, ये बहुत ही वाइडली वेरी करता है एज रिगार्ड्स, अगर हम इसको ये चेक करते हैं विद रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, वो जो अनकैटलॉग्ड हमारी लिविंग स्पीसीज है ना, उनके साथ में। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। And biologists जो होते हैं वो reckon करते हैं कि about 3 to 100 million other living species हैं जो languish करती हैं unnamed in the ignominious darkness। One of the early international commissions जो deal करती हैं inter alia, okay, so one of the early international commission which deals inter alia with the question of ecology and environment was the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, जिनके पास में क्या था? one of the early international commissions जो थे वो डील करते थे internationally with what, with the question of ecology and environment। वो कौन थे? इंटरेलिया, एक इंटरनेशनल इंटरेलिया कौन थे? द ब्रांडेड कमीशन, जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया इंडिया को एज वन ऑफ इट्स मेंबर। उन्होंने बोला इंडिया इज वन ऑफ अ मेंबर एंड सेज, उनके जो पार्ट थे मिस्टर एल.के. झा, जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट जिन्होंने रेज की, उसमें क्या रेज किया गया? द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेज हुआ द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट में, और वो क्वेश्चन क्या था? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment। The question is कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? A scorched planet of advancing deserts, जो deserts बनते जा रहे हैं, impoverished landscapes, ऐसे landscapes जो बिल्कुल impoverished हैं, and ailing environment, और बहुत ही unhealthy environment। Are these the three things that we are going to leave for our successors? So this is another big question, ठीक है, that has been raised in the first branded report। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो थे उन्होंने अपनी थॉटफुल बुक के अंदर क्या कहा? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट points out that the earth's principal biological system are four
Fisheries, forest, grassland and cropland. Now what is this? उन्होंने बोला, what did they say? They said मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, उन्होंने अपनी एक थॉटफुल बुक में कुछ लिखा है। वो थॉटफुल बुक क्या थी? वो थॉटफुल बुक थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ओके, इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये जो एक थॉटफुल बुक थी, इसमें इन्होंने क्या कहा? ही पॉइंटेड आउट कि अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, और वो क्या है? फर्स्ट है फिशरीज, सेकेंड है फॉरेस्ट, थर्ड है ग्रासलैंड एंड फोर्थ है क्रॉपलैंड। ओके, फर्स्ट है फिशरीज, सेकेंड है फॉरेस्ट, थर्ड है ग्रासलैंड एंड फोर्थ है cropland. So these are four what? These are the 4 basic biological systems of the world, and they form the foundation of the global economic system. And what are they doing? ये क्या करते हैं? They form the foundation of the global economic system. And in addition to supplying our food, हमारे food को supply करने के साथ साथ में these 4 system provide virtually all raw materials for industry except minerals and petroleums derived synthetics. And in addition to supplying, हमें food देने के अलावा ये जो 4 systems है ना, ये virtually बहुत से industries के लिए कुछ raw material भी देते हैं, except minerals and petroleum derived synthetics. इनके अलावा synthetics हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता है, ठीक है। सो मिनरल एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स के अलावा दे आल्सो प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। इन लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन चेन्स, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जो ह्यूमन चेन्स है हमारी, ठीक है, ह्यूमन जो है वो क्लेम करते हैं ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। सो इन अ लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमंस जो है वो क्लेम करते हैं ऑन दीज सिस्टम, और वो इस सिस्टम पे क्लेम करते हैं कि वो सिस्टम जिससे वो पहुंचते हैं टू एन अनसस्टेनेबल लेवल, एंड वो एक पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। व्हेन दिस हैपेंस, फिशरीज कोलैप्स, जब ये होता है ना, फिशरीज कोलैप्स हो जाती है, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड्स, ग्रासलैंड्स बैरन लैंड, बंजर भूमि बन जाती है, एंड क्रॉपलैंड्स डिट्रॉयड्स, और जो क्रॉपलैंड्स होते हैं वो बहुत ही डिग्रेड हो जाते हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। अभी जो हमारा वर्ल्ड है ना वो क्या है? बहुत ही प्रोटीन कॉन्शियस है एंड प्रोटीन हंग्री है, सबको प्रोटीन 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 चाहिए, एंड उसके लिए ओवर फिशिंग की जाती है, एंड विच इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस नाउअडेज। इन पुअर कंट्रीज, हमारी ये बेचारी पुअर कंट्रीज जो हैं, बहुत सी लोकल फॉरेस्ट जो हैं दे आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। उन्हें डेसिमेट किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, कट किया जाता है, फॉर व्हाट? इन ऑर्डर टू प्रोक्योर एक्सपेंसिव, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड, लकड़ी के लिए, एंड उस फायरवुड को कहाँ यूज किया जाता है? फॉर कुकिंग, चूल्हा जलाने के लिए, कुकिंग करने के लिए। In some places, कुछ places में firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितनी अच्छी चीज हमें एक्सप्लेन की है। ये बोलते हैं कुछ प्लेसेस पे जो चूल्हे के लिए, जो आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए ना, इट हैज गॉन सो एक्सपेंसिव, वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि जो चीज खाने के पॉट के नीचे जाती है ना, नीचे क्या जाती है? खाने के पॉट के लकड़ियां जिन्हें जलाते हैं और फूड कुक होता है, वो कहीं उससे ज्यादा महंगी है जो हमारे उस पॉट के अंदर जाता है। सो द थिंग दैट इज गोज अंडर द पॉट नाउ समवेयर कॉस्ट्स मोर देन व्हाट इट कॉस्ट, मोर देन व्हाट गोज इनसाइड द पॉट। जो उस पॉट के अंदर जाता है उससे कहीं ज्यादा महंगा होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Now since हमारा जो tropical forest है ना, वो क्या है? in the word of Dr. Myers, ये एक power house है of evolution, evolution का power house। कुछ species हैं life की जो extinction face कर रही हैं, and as the result of its destruction, और कैसे ये जो destruction हो रहा है ना environment का, उसकी वजह से। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. Now it has been very truly said कि mankind को precede करने वाला कौन है? It's the forest, and to follow it, who is behind?
deserts are to follow it. So the world's ancient patrimony of the tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. So उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड की एंशियंट पैट्रिमोनी है ना ऑफ द रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो अभी इरोड हो रही है एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year. And growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. अब होने क्या लग गया है, खाद का बेसिक यूज होने लग गया है. ठीक है, हम प्लांटिंग करने के लिए, अपने क्रॉप्स को बेटर करने के लिए व्हाट वी यूज, हम खाद को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डंग ऑफ जो है फॉर द बर्निंग डेप्रीवेट्स बर्निंग, ये डिप्राइव करता है हमारे सॉइल को, जो उसके पास एक इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर होता है ना, उससे उसको दूर कर देता है. The World Bank estimate करता है that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि 5-fold इंक्रीज हुआ इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, जो है चाहिए हमें, इज नीडेड, उसकी जरूरत है टू कोप अप विद व्हाट, टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. जो ईयर 2000 में जो फ्यूल वुड डिमांड है उसको कोप अप करने के लिए. James Speth, the president of World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. Now James Speth बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ना वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा था अदर डे that we were saying, हम बोल रहे थे that we are losing the forest at an acre a second, कि हम अपने फॉरेस्ट को लूज कर रहे हैं at the speed of an acre a second, but we are much closer to an acre and a half to a second. हम सिर्फ acre नहीं, but we are very close कि हम 1.5 acre lose कर देंगे. So we are very close to that. So Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 48A जो है Constitution का, इंडिया का, ये हमें प्रोवाइड करते हैं दैट हमारी जो स्टेट है ना, इट शैल ऑलवेज एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है कंट्री की, उसे सेफ गार्ड करने के लिए. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. बट जो एंडलेस एंग्विश कॉज करता है ना, वो ये फैक्ट है कि जो लॉज है ना, दे आर नेवर रिस्पेक्टेड, उन्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, नॉर दे आर एनफोर्स्ड इन इंडिया, ना ही उन्हें हम इंडिया में एनफोर्स करते हैं. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly. And for instance, it is said कि जो constitution है ना, वो ऐसा बोलता है that casteism, untouchability and bonded labor जो है, it shall be abolished, but वो flourish करता है shamelessly even after 44 years of operation of the constitution. Now a recent report of our parliament has come. उसका एस्टिमेट, जो पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी है, उन्होंने एक हाईलाइट किया है द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स. उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स. एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, और इंडिया को अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डेटा, वो लूज कर रही है इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर. ठीक है, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. और large areas जो officially designated हैं, जिन्हें हम forest land कहते हैं, they are already virtually treeless. Actual loss जो हुआ है और फॉरेस्ट का, वो क्या है, is estimated to be about 8 times. वो उसको हमने estimate किया है about 8 times the rate indicated by government statistics. 8 times the rate जिसे हम indicate करते हैं by the government statistics. So ये है. So हमने देखा है इन चीजों को. And now the last thing for today's class that we are going to see is that a 3-year study using satellites and aerial photography conducted by United Nations, उन्होंने warn किया है that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated.
एक 3 ईयर स्टडी हुआ है यूजिंग द सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी जो कंडक्ट हुई है बाय द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने वार्न किया है कि दैट जो हमारा एनवायरनमेंट है ना हैज डिटीरियोरेटेड, हमारा एनवायरनमेंट इतना बैडली डिटीरियोरेट हुआ है दैट ही क्रिटिकल है इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। जो 88 कंट्रीज में इन्वेस्टिगेट की तो उनके लिए ये डिटीरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज वेरी बैड। सो ये उन्होंने कहीं ना कहीं हमें इस स्टडी ने ये चीज से हमें अवेयर किया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट वी शुड टेक केयर एंड वी शुड प्रोटेक्ट and we should safeguard our environment, because if not the deterioration of environment is going to be bad for all the 88 countries that have been investigated in a 3-year study using what, using satellites and aerial photography. Okay, so we can say in today's class we'll stop it over here, and in tomorrow's class we'll continue and complete the chapter. So till here आप क्या समझे that environment needs our protection and we should protect our environment. Okay, so this is all. So just go through the text till this point what we have studied, जितना हमने पढ़ा है, and the remaining we'll be completing in tomorrow's class. And if there are any queries then also you can ask me. Okay, so happy Lohri once again. Enjoy the day. Have a safe and a happy and a prosperous Lohri. Okay? Bye-bye.